الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں المعجب لا عقل لہ، خود پسند عقل نہیں رکھتا۔ المعجب لا عقل لہ، خود پسند عقل نہیں رکھتا۔ بحث ہماری میرے عزیزو ہماری مبادی و صرف کے بارے میں چل رہی تھی، جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے۔ آج ہماری جو بحث ہے مبادی و صرف کے سوال نمبر 104 میں ہے۔ موضوع المصدر المیمی و اسم المصدر ہے۔ موضوع درس کا مصدر میمی اور اسم مصدر ہے۔ سوال نمبر 104 یہ کہہ رہا ہے ماذا تفہم بالمصدر المیمی، مصدر میمی سے کیا سمجھا جاتا ہے، یعنی مصدر میمی کیا ہوتی ہے۔ میں ایک تعریف باہر سے کرتا ہوں، وہ بھی اسی سے مربوط ہے، اور ایک تعریف کتاب والی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مصدر میمی ایک مصدر قیاسی ہے جس کے شروع میں میم زائدہ پائی جاتی ہے، اور معنی کے لحاظ سے اصلی مصدر کے ساتھ اس کا کوئی تفاوت اور کوئی فرق نہیں ہے۔ مصدر میمی مصدر ہے ایسی جس کے شروع میں میم زائدہ ہوتی ہے، اور معنی کے لحاظ سے اصلی مصدر کے ساتھ اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ مصدر میمی ثلاثی مجرد سے جو ہے اس کے دو وزن ہیں۔ مصدر میمی کے ثلاثی مجرد سے دو وزن ہیں۔ مفعل جیسے ضربہ سے مضرب، اور ایک وزن ہے مفعل وعدہ سے موعد۔ مصدر میمی ثلاثی مجرد سے غالباً مفعل کے وزن پر آتی ہے میرے آقا جان۔ مصدر میمی ثلاثی مجرد سے غالباً مفعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے قتل سے مقتل، کرر سے مقرر، ٹھیک ہے آقا جان۔ جرا سے مجرا، حایا سے محیا، واجلہ سے موجل۔ اور کبھی کبھی جو ہے نا یہ مفعل کے وزن پر بھی آتی ہے۔ مفعل کے وزن پر کہاں آتی ہے؟ جب مثال واوی آگا جانو، مثال واوی ہو اور اس سے مصدر میمی بنائی جائے تو وہ مفعل کے وزن پر آتی ہے، جیسے وعدہ یعدو سے موعد، وصل یاصلو سے موصل، ولد یالدو سے مولد، وارث یارثو سے مورث۔ توجہ فرمائی آپ نے، سوال کیا ہے کہ مصدر میمی کیا ہوتی ہے جناب۔ مصدر میمی ایک ایسی مصدر ہے جس کا مصدر غیر میمی سے معنی میں اختلاف نہیں ہے، یعنی مصدر میمی کا معنی اور مصدر غیر میمی کا جو معنی ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ مصدر میمی جو ہے فعل کے شروع میں میم زائدہ لگانے سے بنائی جاتی ہے۔ فعل کے شروع میں میم زائدہ لگانے سے مصدر میمی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے دوسرا پھر سوال شروع ہو جائے گا کہ مصدر میمی کیسے بنائی جاتی ہے۔ وہ میں نے آپ کو ایک کلی خاکہ پہلے تھوڑا سا بیان کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ۔ المصدر المیمی و اسم المصدر، مصدر میمی اور اسم مصدر۔ ماذا تفہم بالمصدر المیمی، مصدر میمی سے کیا سمجھا جاتا ہے۔ جواب المصدر المیمی هو مصدر لا يختلف في المعنى عن المصدر الغیر المیمی۔
मसदर मीमी वो मसदर है जिसका मसदर गैर मीमी से माना में इख्तलाफ नहीं है। वह हुआ युबना मुत्तरदन मिन कुल्ल फ़िअलिन बिज़ियादत मीमिन फ़ी अव्वलिही, और मसदर मीमी जो है राइज तौर पर बनाई जाती है हर फेल से बिज़ियादत मीमिन फ़ी अव्वलिही, फेल के शुरू में मीम ज़ैदा लगाने से बनाई जाती है। दूसरा सवाल लगा जान, कैफा युबनल मसदरुल मीमी, मसदर मीमी कैसे बनाई जाती है, मसदर मीमी कैसे बनती है। तो फिर इसमें आपकी खिदमत में अर्ज किया है, ये देखना होगा कि ये मसदर मीमी फेल सुलासी से बना रहे हैं या फेल गैर सुलासी से बना रहे हैं। अगर मसदर मीमी फेल सुलासी से बना रहे हैं तो वो मफ़अल के वजन पर आती है जब तक वो मिसाल सही और लाम माज़ूफ़ वल फ़ा मुज़ारे में ना हो, तो मफ़अल के वजन पर आती है। लेकिन अगर वो मिसाल हो, सही और लाम हो, जिसका मुज़ारे में फ़ा कलमा हज़फ हो, तो फिर वो मफ़इल के वजन पर नागजान आती है। अच्छा, अगर मसदर मीमी गैर सुलासी से है तो उसका तरीका कार ये है कि मुज़ारे मजहूल जो है ना, मुज़ारे मजहूल, उसमें मुज़ारे की अलामत को मीम मज़मूमा से बदल जाएं। मुज़ारे मजहूल जो है उसकी हरफ मुज़ारे को मीम मज़मूमा में अगर बदल देते हैं हम, तो फिर वो बन जाती है क्या आगा जान, मसदर मीमी गैर सुलासी से बन जाती है। मसदर मीमी गैर सुलासी से बनाने का तरीका ये है कि मुज़ारे मजहूल जो है उसकी हरफ मुज़ारे हटाकर मीम मज़मूमा लगा दें तो मसदर गैर मीमी गैर सुलासी मुजरद की बन जाती है। मेरे अजीजो तवज्जो, कैफा युबनल मसदरुल मीमी, मसदर मीमी कैसे बनाई जाती है। युबनल मसदरुल मीमी मिनस सुलासी अला वजन मफअल, मसदर मीमी सुलासी से मफअल के वजन पर आती है। नहव मंजर, मजरब व मरमा, शर्त है, शर्त मेरे बच्चे, मालम यकुन मिसालन सही अल्लाह में माज़ूफ़ुल फ़ा बिल मुज़ारे, जब तक ये मिसाल ना हो, सही और लाम ना हो, माज़ूफ़ुल फ़ा ना हो मुज़ारे में, तो मफ़अल के वजन पर आती है। फ़युबना अला वज़न मफ़इल, फ़युबना ये क्या बता रहे हैं, यानी अगर वो मिसाल है, अगर वो सुलासी मिसाल है, सही और लाम है, माज़ूफ़ुल फ़ा है मुज़ारे में, फ़युबना अला वज़न मफ़इल, तो मसदर मीमी मफ़इल के वजन पर बनाई जाती है। नहव मौइद किससे बनी है जी, मिन वअदा याइदो से मौइद, व मौके मिन वका याकौ से मौके, व मिन गैर सुलासी अला वज़न मुज़ारिहिल मजहूल बिइब्दाल हर्फिल मुज़ारिअति मीमन मज़मूमतन। गैर सुलासी से मसदर मीमी, युबनल मसदरुल मीमी मिन गैर सुलासी, मसदर मीमी जो है गैर सुलासी से अला वज़न मुज़ारिल मजहूल, मुज़ारे मजहूल के वजन पर बनती है। बिइब्दाल हर्फिल मुज़ारिअति मीमन मज़मूमतन, हर्फ मुज़ारे को मीम मज़मूमा में बदलने से। नहव मुकरम मिन युकरमो से बन गया जी मुकरमुन, युकरमो जो है उसकी जो या अलामत मुज़ारे उसकी जगह पे मीम मज़मूमा लगाई, बन गया मुकरमो। मुनहादिरुन किससे बना जी, मुनहादरुन अगजान, मिन युन हादरो, युन हादरो से फकत या को हटा के मीम मज़मूमा मुनहादरो रुन। व मुज़दहमुन मिन युज़दहमो, युज़दहमो से बन जाएगा मुज़दहमो। फवाइदो, फवाइद में ये बता रहे हैं कि जो मसदर मीमी है, ये जो अभी मैं बता रहा हूं, इनसे क्या आई है अगजान, शाद आई है, शाद है, ठीक है ना। फवाइदो शज़्ज़ा मिनस सुलासी
المعتللام شاذ ہے ثلاثی معتللام. معتللام کیا ہوتا ہے؟ ناقص. ثلاثی معتللام یعنی ناقص سے مصدر میمی جو ابھی بتائی جا رہی ہے یہ شاذ ہے. وہ کیا ہے؟ المعصیہ، المحمیہ، المرضیہ والمعویہ ومن الصحیح الذی ضمت عین مضارع ہی، اور صحیح سے جس کا مضارع کا عین کلمہ کو ضمہ دیا گیا ہے. صحیح جس کے مضارع کے عین کلمے کو ضمہ دیا گیا ہے اس سے بھی یہ کیا ہے میرے آقا جان؟ مصدر میمی شاذ طور پر آئی ہے. کس وزن پہ؟ یہ المرفق والمطلع ومن الصحیح الذی کسرت عین مضارعہ، اور صحیح سے جس کے مضارع کے عین کلمے کو کسرہ دیا گیا ہے وہ بھی کیا ہے جان؟ شاذ ہے. یہ جو ابھی وزن آ رہے ہیں ومن الصحیح، صحیح سے الذی کسرت عین مضارعہ جس مضارع کے عین کلمے کو کسرہ ہے یہ وزن جو ہیں شاذ ہیں. المرجع، المعذرہ، المغفرہ والمعرفہ ومن المعتل العین، معتل العین سے بھی یہ مصدر میمی آئی ہے شاذ. پیچھے شذ کا رابطہ ہے نا. المسیر والمکیل، المجی، المبیت، المشیب، المغیب، المسیر، المزید والمسیر. دوسرا میرے آقا جان جو فائدہ ہے فوائد میں سے وہ یہ ہے، بتا رہے ہیں کہ مصدر کی ایک اور قسم بھی ہے جس کو مصدر ثنائی کہا جاتا ہے. توجہ فرمانا، مصدر کی ایک اور قسم پائی جاتی ہے جس کو مصدر ثنائی کہا جاتا ہے. اور مصدر ثنائی کے بنانے کا طریقہ یہ ہے، ٹھیک ہے یا نہیں آقا جان؟ یہ ایک اسم ہے جس کے اندر معنی مصدری ہوتا ہے اور یا مشددہ اور تا کو آخر میں جب لگا دیتے ہیں تو یہ مصدر ثنائی بن جاتی ہے. مصدر ثنائی ایک اسم ہے، ٹھیک ہے یا نہیں، کہ جس کے اندر مصدر کا معنی ہے اور آخر میں یا مشدد اور تا کے لگانے سے یہ بنائی جاتی ہے. جیسے انسان سے انسانیہ، جاہل سے جاہلیہ، مصدر سے مصدریہ. توجہ فرمائیے، یہ صرف متوسط والا نے اس طرح بتایا ہے. ابھی میں کتاب سے بھی وہی مطلب ہے تقریباً تھوڑا سا فرق کے ساتھ. یوجد نوع من المصدر یقال له المصدر الثنائی. یوجد نوع من المصدر کی ایک دوسری نوع پائی جاتی ہے جس کو مصدر ثنائی کہا جاتا ہے. وَهُوَ عبارۃ عن اسم منصوب ملحق بتاء التانیث. مصدر ثنائی عبارت ہے ایک اسم منصوب ہے ملحق بتاء التانیث، اور اس اسم منصوب کے ساتھ سین والا البتہ اسم منصوب کے ساتھ جو ہے تاء تانیث ملحق ہوتی ہے. وَلَهُ معنی المصدر، اور اس کا مصدر کا معنی ہوتا ہے، اور اس کے لیے مصدر کا معنی ہوتا ہے. وَيُبْنَى اما من اسم الفاعل، وَيُبْنَى یہ مصدر ثنائی بنائی جاتی ہے اما من اسم الفاعل یا اسم فاعل سے، مثل عالمیہ، او اسم المفعول یا اسم مفعول سے، مثل معذوریہ، او افعل تفضیل یا افعل تفضیل سے، مثل ارجحیہ و اسبقیہ، او من الاسم الجامد یا اسم جامد سے بنائی جاتی ہے، مثل انسانیہ، او من اسم العلم اسم علم سے بنائی جاتی ہے، مثل عثمانیہ. دیکھو یا تا لگتی آ رہی ہے، یا تا. او من المصدر مثل اسنادیہ، او من المصدر المیمی یا مصدر میمی سے بنائی جاتی ہے، مثل المصدریہ. او غیر ذالک مما تعرفہ بالاستقراء، یا ان موارد کے علاوہ مما تعرفہ بالاستقراء جن کو موارد کو استقراء کے ذریعے پہچانتے ہیں. ایک تو یہ اوپر والے مورد ہو گئے نا جان،
इसके साथ फरमाते हैं औ गैर ज़ालिक मिम्मा तारिफू बिल इस्तिक़रा, ये इन ऊपर वाले मवारिद के अलावा मिम्मा वो मवारिद तारिफू बिल इस्तिक़रा जिनको इस्तिक़रा के जरिए जो हैं पहचानाते हैं, तो उनमें भी इसी तरह बनती है। वयुश्तरतु फ़ीही अन ला युज़कर माहू अल मौसूफ लफ्ज़न वला तक़दीरन, तवज्जो अज़ीज़ो, शर्त है इस मस्दर सुनाई की कि इसके साथ मौसूफ लफ्ज़न या तकदीरन जिक्र ना हो, जिक्र ना किया जाए। अगर इसके साथ मौसूफ को भी जिक्र किया जाए, ठीक है या नहीं, तो वो इसमें मंसूब होता है, ला गैर, इसके अलावा नहीं, यानी वो सिर्फ इसमें मंसूब होता है अगर मौसूफ जिक्र हो तो। वयुश्तरतु फ़ीही अन ला युज़करा माहू अल मौसूफ लफ्ज़न वला तकदीरन, मस्दर सुनाई में शर्त है अन ला युज़कर माहू अल मौसूफ हो कि इस मस्दर सुनाई के साथ मौसूफ को जिक्र ना किया जाए, लफ्ज़न वला तकदीरन, लफ्ज़न जिक्र ना किया जाए, वला तकदीरन, और ना तकदीरन जिक्र किया जाए। फ़इन ज़ुकिरल मौसूफ माहू, अगर इस मस्दर सुनाई के साथ मौसूफ को जिक्र किया जाए और कुद्दरा या मुकद्दर किया जाए, काना इस्मु मंसूबन, तो वो इसमें मंसूब होगा, ला गैर, इसके अलावा नहीं, यानी वो सिर्फ इसमें मंसूब कहलाएगा, इसके अलावा कोई और नहीं है। अगर जान कोई और नाम उसको नहीं दे सकते हम। ठीक है मेरे अजीजों, सादा सी बात है, ज्यादा वजाहत में कोई जाने की जरूरत ही कोई नहीं है, मतलब सादा हो। ऐसे अपने आप को और अजीजों को जंजाल में क्यों डालें, मतलब जो सादा और रवान सी बात है। और इस दूसरे फायदे में सिर्फ इतना बताया गया है कि एक मस्दर सुनाई भी होती है जनाब। अच्छा जी, मस्दर सुनाई क्या होती है? मस्दर सुनाई एक इसम होता है जिसके अंदर मस्दर का मान होता है और उसके आखिर में या मुशद्दद और ता का इजाफा कर दिया जाता है, ये है। और फिर इन चीजों से बनती है जो कि मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया है। सवाल बादी, माज़ा तुफ़हमु बिस्मिल मस्दर, इसमें मस्दर से क्या समझा जाता है, इसमें मस्दर क्या होती है? जवाब अगर जान फरमाते हैं, मैं एक तारीफ बाहर से कर रहा हूं, फिर मैं किताब वाली तारीफ करता हूं, थोड़ी सी मैं बाहर से भी मदद लेता हूं, परेशान ना होना। इसमें मस्दर क्या है? इसमें मस्दर एक ऐसा इसम है जो नतीजा मस्दर होता है, हासिल मस्दर, नतीजा मस्दर को इसमें मस्दर कहते हैं। नतीजा मस्दर, हासिल मस्दर को इसमें मस्दर कहते हैं अगर जान। ठीक है, थोड़ा इतना फर्क रखेंगे कि अगर फेल की निस्बत फाइल की तरफ दी जाए, फेल का इंतिसाब फाइल की तरफ हो, ठीक है या नहीं, तो उसको मस्दर कहते हैं। फेल की इंतिसाब और निस्बत फाइल के साथ हो तो उसको मस्दर कहते हैं, ठीक है या नहीं। लेकिन अगर नजर खुद फेल की तरफ हो और फाइल की तरफ हम नजर ना करें तो वो इसमें मस्दर कहलाता है, ठीक है या नहीं। मस्दर है मोहब्बत, दोस्ती करना, दोस्ती करने वाला कोई होगा ना, फाइल की तरफ निस्बत दी है इसकी। इसमें मस्दर है हुब, दोस्ती, ठीक है। ये सर्फ मुतवस्सिता वाले ने ना वजान इस तरह इसकी तारीफ की है। मैं दोबारा करता हूं, फिर मैं किताब वाली करता हूं ताकि मुमकिन है थोड़ा मतलब बेहतर तरीके से हल हो, ठीक है या नहीं वजान। इसमें मस्दर क्या होता है? इसमें मस्दर हासिल मस्दर, नतीजे मस्दर को कहते हैं, ठीक है। मस्दर और इसमें मस्दर में क्या फर्क है जी? मस्दर वो होती है कि फेल की निस्बत फाइल की तरफ होती है तो मस्दर कहलाती है, ठीक है। अगर खुद फेल मोरद नजर हो, फाइल को तवज्जो ना हो तो वो इसमें मस्दर होता है मस्दर मोहब्बत, मोहब्बत दोस्ती रखना। इसमें मस्दर हुब, दोस्ती है, ठीक है ये नहीं अगर जान। तहारत, पाक होना, इसमें मस्दर क्या है? तोहर, पाकीज़गी, ठीक हो गई बात अगर जान। अभी आगा जी किताब में क्या कह रहे हैं? किताब में फरमाते हैं इस्मुल मस्दर व लफ्ज़ुन यदुल्लु अला मानल मस्दर, इसमें मस्दर वो लफ्ज है यदुल्लु अला मानल मस्दर जो मस्दर के माना पर दलालत करता है। व यनकुसु अन हुरूफ फ़िअलिही लफ्ज़न औ तक़दीरन, और इसमें मस्दर से उसके फेल के हुरूफ से लफ्ज़न या तकदीरन कम होता है।
اسمul मस्दर हुआ लफ्ज़ुन यदुल्लु अला मानल मस्दर, इसमें मस्दर वो लफ्ज है जो मस्दर के माना पर दलालत करता है। वयनकुसु अन हुरूफ फ़िअलिही लफ्ज़न औ तक़दीरन, और ये इसमें मस्दर फेल के हुरूफ से लफ्ज़न या तक़दीरन कम होता है। इसमें मस्दर फेल के हुरूफ से लफ्ज़न या तक़दीरन कम होती है। नहवो अल अता, अल अता क्या है जान, इसमें मस्दर है फायदतुन, इन्ना अल अता इस्मुन ले अल इता, अता इसमें मस्दर है इता की, इता मस्दर है इसकी, इसमें मस्दर अल अता है। इन्नल अता इस्मुन ले अल इता, अता इसमें मस्दर है इता की, इता क्या है, अल्लज़ी हुवा मस्दरो आता। अगर जान ये क्या है, अगर जान इता, इता मस्दरे आता है, ला मस्दरुन लहू, न के अता मस्दर आता है, ला मस्दरुन लहू, ठीक है ये नहीं, न के अता मस्दर आता है, नहीं नहीं, बल्कि क्या है अगर जान, अता इसमें मस्दर है। क्यों जी, ले अन्ना अफ़अला ला यकूनु मस्दरु इल्ला अला वज़न इफ़आल, दलील दे रहे हैं जी, इसलिए कि अफ़अला जो है ला यकूनु मस्दरु, अफ़अला ला यकूनु मस्दरु, इसकी मस्दर नहीं होती है इल्ला अला वज़न इफ़आल, मगर इफ़आल के वजन के ऊपर ये होती है। दोबारा ये फायदा सुने ना, रहे न जाए मतलब, फायदतुन इन्नल अता इस्मुन ले अल इता, अता इसमें मस्दर इता है, अल्लज़ी हुवा मस्दर आता, इता जो के मस्दर आता है, ला मस्दरुन लहू, न के जनाब अली ये अता मस्दर आता है, ले अन्ना अफ़अल ला यकून मस्दर इल्ला अला वज़न इफ़आल, इसलिए कि अफ़अला जो है ला यकून मस्दर हो, अफ़अला की मस्दर नहीं होती है इल्ला अला वज़न इफ़आल, मगर इफ़आल के वजन पर आती है। अफ़अला ला यकून मस्दर हो, अफ़अला की मस्दर नहीं होती इल्ला अला वज़न इफ़आल, मगर इफ़आल के वजन पर मेरे अजीजों होती है। यहाँ किताब में नहीं है, मैं आपको ना एक और नुक्ता दे रहा चाहता हूँ, किताब के अंदर नहीं है, तवज्जो करना, मैंने ये नुक्ता सर्फ मुतवस्सिता से लिया है। नुक्ता क्या है जी, इसमें मस्दर जबान अरबी में सिमाई है, ऐसा नहीं है कि हम हर मस्दर का एक इसमें मस्दर बना देना ना, इसमें मस्दर जबान अरबी में सिमाई है, फकत बाज़ अफ़आल हैं जिनका इसमें मस्दर है। तवज्जो फरमाइए ना, बाज़ अफ़आल का इसमें मस्दर है। मस्दर और इसमें मस्दर जो है, कभी जो है ना इन दोनों का वजन एक होता है और कभी कभी इनका वजन फर्क करता है। दूसरा नुक्ता ये है, पहला तो ये बताया कि इसमें मस्दर का वजन सिमाई है, बाज़ अफ़आल का इसमें मस्दर है, हर एक का नहीं है। दूसरा नुक्ता ये है, मस्दर और इसमें मस्दर का वजन कभी एक होता है और कभी इनमें फर्क कर जाता है। मसलन इल्म, इल्म मस्दर का मस्दर भी वही है, इसमें मस्दर भी वही है, ज़हाब, ज़हाब, बुका, बुका, ठीक है, ये यहाँ एक जैसे आ गए हैं। लेकिन जहां थोड़ा सा फर्क है, मस्दर का वजन और है, इसमें मस्दर का वजन और है, वो आपको बताता हूं। वहब, वहब है मसलन, ठीक है, इससे क्या आएगा जान, मौहिबा, वहब होता है बख्शीदन, बख्शना, और मौहिबा बख्शिश, ठीक है। तो बिलाखिर मतलब ये है बस्त, थोड़ा फैलाना, बस्ता फैलना। तो बताना ये है मस्दर और इसमें मस्दर का कभी जो है ना वजन मेरे अजीजों एक होता है और कभी इनके दरमियान फर्क होता है। मुवफ़्फ़क़ मुय्यद रहो, सलामती हो मेरे अजीजों की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।